तो दोस्तों वेलकम टू अल्टीमेट फाइट फिट। अभी यूएफसी लंदन के एक दिन पहले शायद एक दिन पहले ही होगा, डेना वाइट ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो ये कहता है, तुम लोग पहले ये देखो। Martial arts right now is what's going on in the heavyweight division because there's British interest with Tom Aspinall. Come on, man. Yeah, that's. Give us a little bit of something. Can the fans get excited about the super fight they I'll want to tell see? you what I've been telling you since day one. The fight's going to happen. The fight's going to happen. It's just a matter of when now and getting it signed and done, and the fight will happen. It's done, but it's not done. Not done enough to sit right here now and announce it and give you a date, but the fight's going to happen. With that, then, if I could just poke it a little bit more, is it more on logistics rather than the agreement of the fighters? No. Is it on the logistics? No, of there's it? no. Just a matter of getting it signed now. It's done, but not done enough to sit right here now and give you a date. Fight gonna happen. It's just to get a matter of sign now. तो क्या फाइट मनी में अटके हुए, पैसे दिया, साइन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। पहले हम सब न्यूज़ का वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में एक समरी दूंगा मेरे हिसाब से। और अभी ये देखो, Back on that heavyweight fight, of all the great fights that you have made, and you've done some big ones. Let's be honest about it, especially in the heavyweight division. Where would that rank? Would that be number one? Yeah, I mean, me and my crew believe that this is probably the biggest heavyweight fight we've done. When we pull this off and actually make the fight, announce it, and start leading up to it, that this will be the biggest heavyweight fight in UFC history. जी हाँ दोस्तों, यूएफसी एंड डेना वाइट ये फाइट करवाना चाहती है क्योंकि ये एक मनी मेकिंग फाइट है। ऑब्वियसली ये एक फेस्टिवल की तरह है यूएफसी के लिए। और टॉम एस्पिनल का रिसेंटली एरियल हलवानी के साथ एक इंटरव्यू पॉडकास्ट जो भी होता है वो आया था, और उसमें वो ये कहता है, We had a fantastic meeting. Everything went amazing. I understand my position now. I understand what the company's doing now. And you got to stay tuned, my friend, because there's some big news coming. तो टॉम एस्पिनल ने मेरे हिसाब से यहाँ पर ये कहा कि उसकी नेक्स्ट फाइट की जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुकी है। ये मुझे ऐसा लगता है, इसने यहाँ पर ये कहा, बिग न्यूज़ कमिंग आउट, स्टे ट्यून। क्या लगता है तुम लोग को? जॉन जोन्स के साथ ही है ना? क्या लगता है कमेंट में बताओ। और अभी ये देखो, This is promising. I mean, obviously you had expectations, and it sounded like you weren't let down, you weren't deflated afterwards. Dana White also telling the aforementioned Adam Catterall, "We're done, but we're not done." But it sounds like he is confident as well. So it seems like everything is moving in the right direction. Is that a fair way to assess things right now? I think that's fair. That's fair to say. That's definitely fair to say. तो यहाँ पर एरियल हलवानी टॉम को ये बोलता है कि डेना वाइट का जो यूएफसी लंदन का इंटरव्यू है उसके बारे में बोलता है और पूछता है क्या जो भी लोग सोच रहे हैं उसी के बारे में, क्या वही इट इज़ फेयर। बेसिकली ये बोलता है कि एवरीथिंग इज़ मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन, इट इज़ फेयर वे टू से सच थिंग नाउ। और टॉम बोलता है येस इट इज़ फेयर, यानी कि सब कुछ राइट डायरेक्शन में जा रही चीज़ें। और क्या हम लोग सोच सकते हैं जो अभी पब्लिक सोच रही है? तो टॉम एस्पिनल बोलता है येस इट इज़ फेयर। तो हम लोग को जल्दी देखने को मिल सकता है, अभी जल्दी करवा दो यार ये फाइट जल्दी। तो ओवरऑल समरी ये बनता है कि यूएफसी एंड डेना वाइट भी ये फाइट कराना चाहती है क्योंकि बेसिकली यार ये एक मनी मेकिंग फाइट है। यूएफसी डेना वाइट जो भी है, मतलब इन लोगों को बहुत पैसा बना के देखी ये फाइट, इट्स ए मनी मेकिंग फाइट यार। ये एक फेस्टिवल की तरह होगी। इंडिया में होता है ना दिवाली, दुर्गा पूजा, यूएफसी के लिए ये दस है। हमारे लैंग्वेज में दस ही बोलते दुर्गा पूजा को, यूएफसी के लिए दस ही है, ये यूएफसी के लिए दिवाली है। तो बेसिकली यार इट्स मनी मेकिंग फाइट यार, और करवाएंगे भी क्यों नहीं, फुल कोशिश हो रही है। वैसे टॉम एस्पिनल तो कब से फाइट कर रहा है, अभी जितने भी इंटरव्यू, टॉम एस्पिनल का भी बहुत इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है। और जितने भी इंटरव्यू में ये सवाल तो ऑब्वियसली पूछा जा रहा है, जॉन वर्सेस टॉम क्या होगा, क्या अपडेट है। तो बेसिकली टॉम एस्पिनल तो कब से फाइट करना था। बेसिकली उसने इसी एरियल हलवानी की इसी शो में कंफर्म भी किया है कि मतलब वो आप इंटरम बेल्ट डिफेंड नहीं करेगा, अब तो वो सिर्फ टाइटल, अनडिस्प्यूटेड टाइटल फाइट के लिए फाइट करेगा, या तो जॉन जोन्स के साथ या किसी भी कंटेंडर को, मतलब जॉन जोन्स को रिटायर करा दो। और बेसिकली वो ओवरऑल ये कहता है कि अब तो बस सिर्फ अनडिस्प्यूटेड टाइटल फाइट के लिए फाइट करेगा। तो नेक्स्ट फाइट साइन भी हो गई, तो अब तो मतलब मेरे हिसाब से तो डायरेक्शन उसी में जा रहा है। क्या बोलते तुम लोग कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अब बस मैं ये दुआ करूंगा कि ये सब ना हो कि फाइट शेड्यूल हो चुके, एक हफ्ते बाकी है और जॉन चाचा बोलते हैं कि मैं इंजरी हो गया और टॉम एस्पिनल को किसी और के साथ शॉर्ट नोटिस में फाइट करना, मतलब अभी बहुत देखने को मिल रही है सर, ठीक है। तुम लोग भी प्रेयर करो, ठीक है। हम लोग को नहीं शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं चाहिए किसी और के साथ, प्रेयर करा, ठीक है। अगर किसी और के साथ शॉर्ट नोटिस फाइट हुई, तुम लोग ने प्रेयर नहीं किया या कुछ भी, अरे यार मतलब थक चुके यार हम लोग। ये अपना अभी इस्लाम वर्सेस अरमान भी हो था, लेट्स मेक इट यार, मतलब कराओ ना यार फाइट, कराओ ना यार। और मान लो इतना हवा हो चुका है, ठीक है, टॉम एस्पिनल के बारे में। अगर जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को पेल दिया तो मतलब ऐसा चांस बहुत कम है, लेकिन टॉम एस्पिनल भी है, मतलब जॉन जोन्स भी है, मतलब
चांस कम है, लेकिन MMA कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बेल दिया तो क्या होगा टॉम एसमेल के बारे में, हाँ मेक द रिव्यू कमेंट सेक्शन खुला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे MMA के लिए, एंड कमेंट सेक्शन खुला है।